मैं एयरपोर्ट पे आ रहा हूँ, मेरे बैग में ड्रग्स मिलेंगे, कोई रख देगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि भाई वो तो सच में, लेकिन तू ले जाता है। अबे क्या हो रहा है ऐसा सिलिकॉन वैली में जहाँ ये खोलते हैं और स्टार्टअप चल जाता है? dressed up in 10 different ways and they all look fucking hot. Dude, that's I love good. that. Like, मेरे को ऐसी पार्टी कर Oh, the constant pressure of being a content creator. मेरे को अपने पापा को रिटायर इसलिए करना है क्योंकि मेरा बड़ा भाई कह रहा है। empathy. Agreed. You have a problem, you walk away from me. ये दारू से नहीं पीता क्योंकि लाइफ में I was intellectually humiliated. Yes. मैं तुम्हें जो करता हूँ उसके लिए गलत लगता हूँ, चलेगा. तेरे को डर किस चीज का लगता है? Do you think you Like, made a lot of right decisions in life, like so that you don't mess up? Anything worth doing is worth overdoing. मेरा डर ये है। So my fear is ये because conversation बहुत ही honest जगह जा चुकी है। them. You need people around you who keep you grounded. So what you're essentially going for is fame. While you're saying मैं अपने पापा की मदद करना चाहता हूँ, but तुम 3 घंटे फुटबॉल खेल रहे हो 28 साल की उम्र में और कहीं कुछ नहीं जा रहा है। Does that make sense or no? In your world? Yeah. My dad's right, my brother's right, my mom's right. Who's right, who's wrong? It's so तुम्हें difficult नहीं to पता. figure out. अब तू कैसे बोल दे कि मेरा बचपन ही रॉन्ग है अगर मेरे पापा रॉन्ग है? Yes. Fuck यार, हम कहाँ से कहाँ आ गए बे? मैं सोच रहा था भाई बात करें हम ड्रीम्स की और डर की। क्या बोलता है? तो जिस बात करनी है, मैं सेक्स वाले में भी रेडी हूँ. बस सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, हो गया फिक्स। चलो बात करते हैं। वेलकम टू न्यूयॉर्क सिटी। हाउस योर एक्सपीरियंस बीन द लास्ट 3 days हैंगिंग आउट विद मी? Damn, been, bro? How's nice. it been? Loved it. Yeah. Loved every bit. Right, Loved yeah. last night when I'm I a was fun guy, man. like, I'm a fun guy. when we were in Washington Square Park. क्या सही था भाई, मजा आ गया. Bro, it's a crazy city, bro. I keep wondering because मैं इस दुनिया में एंटर किया जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे लिए ये सब बहुत एस्पिरेशनल था। अमेरिका रहना, न्यूयॉर्क रहना, देखना कि दुनिया में इतने बड़े टावरों में काम क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, धंधा क्या होता है। अब मेरे कुछ दोस्त हैं जो इंडिया से आते हैं, जिनके पास एक they have a very fucking great view of India. Where you live is a great view of India, and I don't mean physically, but like even mentally. And I wonder how they feel about coming to say a New York City. तेरे को क्या लगता है? Do you like it? Like, has this lived up to your expectation? Yes or no? What is this like for you? Same here यार, इतना good. I tell you one thing which I love really love about New York. और cities like New York, London, cosmo cities हैं, जो इंडिया में अभी भी नहीं है. And even though I come from like a very now that where I live in Bombay, it's like Beautiful, freaking good, everything, beautiful, right? Like skyscrapers, all that shit, मजा आता है. श्याम, हाँ. तो उसके बाद भी एक चीज़ है which is diversity. Like you can walk on a New York street and then automatically you'll find 10 people dressed up in 10 different ways and they all look fucking hot. Like, dude, that's I love good. that. Like there's no one set of protocol or dress up कि भाई ये होगा Monday to Tuesday तुम्हें ये like the one guy would be just hanging out and let's say there'll be one girl in a bikini, the other girl would be in heels, the other guy would be in overcoat, वो jacket पहन के घूम रहा होगा. Fuck, zero fucks about Yeah, how you should be. How you should be. Exactly. क्या weather है, कैसा है, जिसको जो personal statement है वैसे. So that shows a lot of diversity. Like the city is very acceptable of a lot of stuff. Agreed. ये बॉम्बे में नहीं होता. Like you can go to specific area और तुम्हें maximum लोग same दिखेंगे. यहाँ तो किसी भी एरिया में चले जा, maximum लोग अलग दिखेंगे. बिल्कुल. And that's one Not thing which I just that, love bro. about New York. Like that shows बहुत मजा आता है. तू अगर यहाँ वॉक अराउंड करेगा, बगल में चाइना टाउन है, उधर लिटिल इटली है, फिर सोहो है, ठीक है? When you walk around these streets, you will hear 10 different languages also being spoken in the same place with 10 different accents, and nobody minds that. Yeah. But that's just New York. That's not rest of America. So deeply cosmopolitan, where अगर मैं theoretical level पे बात करूँ, ये global city है, ये American city नहीं है. अमेरिका ने global city house कर रखी है. तो वो angle जो है वो बहुत crazy है. But जो तू दूसरी बात कर रहा है ना, you know how like Kunal Shah will talk about financial games and status games, money games and status games, ऐसे कुछ कहता है ना? हाँ. I differ there. Wealth creation versus status. Wealth games and status games. I don't think it is wealth versus status. Wealth and status are interconnected too much to be separated. I think what it is an individual based culture and a role based culture. और इंडिया में हम रोल बेस्ड कल्चर में, जहाँ पे मैं क्या पहन रहा हूँ is a reflection of an expectation you have. Like कोई बोलेगा राज, but up until you grow up, for the most part your conditioning is so and so का बेटा. So like the expectation factor is so unconscious and alive in that role based culture कि that is true. You feel a very different sense of freedom in these lands. Agreed. So एक बड़ा रीज़न उसके लिए भी है. India is a community driven society. ठीक है. इधर people are individual, right? Because यहाँ पे सब लोग कहीं ना कहीं से आए हैं. सब लोग कहीं ना कहीं से आए, तो उन्हें पता है कि उन्हें अपनी जगह बनानी पड़ेगी. इंडिया में हमें day one से, so I tell you this is how you understand better than me of course, कि every human being
फ्रॉम डे जीरो जब से मतलब उसे समझ में आने लग जाती, नॉट द डे दिस बॉर्न, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑलवेज आर लुकिंग फॉर अवर फ्लॉक, वी आर लुकिंग फॉर अवर कम्युनिटी, वी नीड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बिकॉज दैट्स द अल्टीमेट की हमें एक जगह बिलोंग करना है, किसी को एस्पिरेशनल लेवल पे, किसी को कहीं पे, किसी को राइट, हमको सबको बिलोंग करना है. तो कम्युनिटी ड्रिवन सोसाइटीज़ में क्या होता है, फ्रॉम डे वन यू बिलोंग समवेयर, राइट. तो तुम्हें लगता है कि ये सोसाइटी है, तो तुम पहले तो कुछ साल तक जब तक तुम्हें सोसाइटी की समझ होती तब तक तुम उस सोसाइटी में एस करने की कोशिश करते हो, तो तुम उस सोसाइटी के रोल मॉडल्स को देखते हो, उसी में जीने की कोशिश करते हो. एंड इंडिविजुअल सोसाइटीज़ में क्या होता है, तुम्हारे पास कोई रोल मॉडल नहीं है, तुम्हें जीतना है, तुम्हें ढूंढना है, तुम्हें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जीरो है तुम्हारे लिए. ब्रो ये बहुत जबरदस्त बात कर गया तू. हाँ बोल प्लीज फिनिश. हम डे वन पे हमें बता दिया जाता है कि हमारा रिलीजन क्या है, हम कैसे बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, हम कैसे सिटी से आते हैं, हम क्या करते हैं, हम लोग की सब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है. यहाँ पे कुछ नहीं है. बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि यहाँ एक्चुअली ऐसा होता है, आदमी 18-19 में फिगर आउट करता है मेरे टेस्ट क्या है जीवन में, मैं करना क्या चाहता हूँ. अच्छा फिर वो ऐसा बन गया, फलाना ढंग का रेवो में जाना शुरू कर दिया उसने. हमारे यहाँ 18-19 पे आदमी को रफली पता है कि अच्छा ठीक है मैं कॉलेज जा रहा हूँ, फिर मेरी तो यू आर राइट कि शुरू से बिलोंगिंग की नीड पूरी हो जाना, और इसीलिए यहाँ पे लोनलीनेस एक अलग मर्ज है. यस, ये बात सच है. यहाँ पे लोनलीनेस एक कंप्लीटली डिफरेंट मॉन्स्टर है जो हर आदमी आता है ना इंडिया से सबसे पहले फेस करता है कि भाई माँ के यहाँ किसके साथ घूमने जाऊँ मैं. कोई नहीं है घूमने को, सबके अपने काम है. हमारे यहाँ झुंड 12 लड़के बैठे हैं बोलेरो में घूमेंगे, लाइक समझ रहे, वो वाली फील होती है हमारे यहाँ. फॉर्च्यूनर बढ़ाओ भाई. See, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स तो हैं यार. लाइक एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू थिंक अबाउट बोथ द थिंग. हर किसी का हर चीज़ हर जगह अच्छी हो नहीं सकती. तो फिर एक बात था, अगर तेरी एस्पिरेशन ऐसी मटेरियल एस्पिरेशन नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी बहुत बात करी और तूने मेरे को मेंशन किया है कि जैसे कितने 26 कंट्रीज में बात कर चुका है तू. तेरा पब्लिक स्पीकिंग का पेट भर गया होगा, तेरा पॉपुलैरिटी का पेट भर गया होगा, रफली पैसे का भी पेट भर गया होगा. तू 10 साल से पैसे के गेम में भी है, राइट. जो आदमी 21-22 पे शुरू करता है, तूने 16-17 साल की. अब तेरे सपने क्या है यार? अब मैं फालतू बात करूँगा, तू बोलेगा ऐसी बातें कर रहा है. नहीं यार, मैं नहीं मानूंगा भाई, मैं प्यार से पूछ लूँ. भाई बता. बिकॉज द मोमेंट यू टॉक अबाउट एस्पिरेशंस, राइट, लोगों को लगता है कि क्या हवा में बातें कर रहा है, बट पीपल हैव टू रियलाइज दैट इट कम्स इन फेजेस. मैं सेम जो अभी मेरे जो सपने हैं, जो अभी मेरी अब जो गेम है, वो वो 10 साल पहले नहीं थी, earlier. So now the game is like there are few issues which I've struggled with in my life. I don't want anyone else to go through the same issues. Like, right? So let's say a sense of financial freedom. I'll tell you. So financial freedom doesn't only mean कि finances and freedom, right? दो चीज़ में divided है. लोग mostly जब तुम financial freedom की बात करते हो, लोगों को लगता है पैसा कमा लो हो गया, right? But India में so financial freedom is, I tell you क्या होता है, मेरे को जो लगता है basically when you have the power to decide where you want to live, with whom you want to live and what you want to do, right? Regardless of any factor कि मैं कितना कमाऊंगा, किसके साथ रहूंगा, कौन मेरे रिलेटिव्स हैं, क्या मेरे घर वाले, कुछ नहीं. ये तीनों डिसीजन अगर तेरे हाथ में है, तूने ले लिया, ये फाइनेंशियली फ्री. अगर तू रोज सुबह उठ के ये डिसाइड कर सकता है तो, राइट, यू हैव फ्रीडम एंड फाइनेंशियल एबिलिटी. दे सही, ये तीन डिसीजन है विच आई फील एवरी इंडिविजुअल पर्सन शुड टेक देमसेल्व्स. बट आई फील कि इंडिया में यही तीन डिसीजन तो घर वाले लेते हैं, बाकी सब तुम्हारे हाथ में छोड़. कम्युनिटी बेस्ड लिविंग. हाँ, तो ये तुम्हारा लाइक डे वन पे तुम्हें बोल दिया जाता है कि तुम कौन सी सिटी में रहो, जहाँ माँ बाप रुकते हैं. ऑफ कोर्स हाँ, माँ बाप को सोच सकते हो अकेले. हाँ, कैसे कर सकते हो? तुम किससे शादी करोगे, जो माँ बाप डिसाइड करेंगे. हाँ, तुम माँ की बात कैसे कर सकते हो? हाँ. तुम क्या करोगे, बचपन से माँ बाप ने सपने देख रखे हैं, राइट. फरहान कुरैशी. बचपन से फ्रॉम डे वन योर लाइक दीज आर द थ्री क्वेश्चन व्हिच इज डिसाइडेड. सो आई वांट जनरली नाउ टू डू समथिंग वेयर दीज थ्री थिंग्स, जो मेरा सुनता है कंटेंट, या मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट मैं 1 लाख लोगों के लिए इस प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ वेयर दे आर फाइनेंशियली फ्री and then they have learned enough to make their own money to be mentally so strong that they can take these decisions themselves. So अब मेरा गोल वो है कि यार जो मैं खुद के लिए कर पाया ना, अब मुझे ये और 1 लाख लोगों के लिए करना है. Now that is the why. That is why I am doing courses, that is why I'm doing content, that is why I'm building a business, because building business is also important. क्योंकि अगर मैं खुद एग्जाम्पल नहीं बन सकता तो मैं लोगों को क्या ज्ञान दे रहा हूँ. Of course. Right. तेरे पास पैसा नहीं है, तू क्या करेगा? Exactly. So I have to be an example कि भाई मैं खुद भी कर रहा था, I am making money by doing what I love, और आई एम मेकिंग इनफ मनी. सो तुम तभी तुम्हारे लिए एस्पिरेशन होगा, जब तक एस्पिरेशन नहीं होगा तब तक करेंगे. तो अब वो गेम है. बिल्कुल. अब ये 10 साल पहले नहीं ना, 10 साल पहले से पैसे कमाना था. जब थोड़े पैसे कमा लिए फिर से फेमस होना था. जब फेमस हो गए तो बस ये थोड़े थोड़े मटीरियलिस्टिक गोल्स ही थे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड अभी भी आई वुडंट से दैट आई हैव बिकम लाइक अ कंप्लीट सेंट और वाई ड्रिवन पर्सन. अभी भी ऐसा होता है यार. लाइक बिल्कुल बिल्कुल. यू सी वन ऑफ योर फ्रेंड्स जो सेम लेवल पे ऑपरेट करता था, वो नई गाड़ी लेगा, तुम्हें लगेगा यार मेरे को भी चाहिए गाड़ी, राइट. तुम्हें लगेगा कि यार तुम्हारे मिलियन फॉलोअर्स है, उसके तो 2 मिलियन है, तुमको भी चाहिए. सो ये थोड़े थोड़े फेजेस होते हैं, बट बॉटम लाइन आई थिंक नाउ इट्स अ वाई ड्रिवन गेम मोर देन
material driven game. I think you are spot on in the sense जो तू कह रहा है ना phases में होता है, ये बिल्कुल accurate है. मेरे पेरेंट्स, और ये फेजेस सिर्फ एक इंसान के जीवन में नहीं, दिस इज अ जनरेशनल फेज. आई थिंक दैट इज द गुड थिंग अबाउट इंडिया इज दैट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन शेयर एस्पिरेशंस टुगेदर, अगर तुम उनको ढंग से मोल्ड कर सको. हाँ. राइट. मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी, बहुत गरीब है दोनों थे एक टाइम पे, और उन लोगों ने मेरे को एक अच्छे स्कूल भेजा, अब एक अच्छे कॉलेज भेजा, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. मेरे लिए इसीलिए एस्पिरेशन वाज ऑलवेज अ स्केल बिगर देन व्हाट माय पेरेंट्स कुड डू. And I could like if I went in to do law, I would already start at a position where things are going to be so much easier. Yeah. मेरी खुददारी में, बचपन की खुददारी में, I was like नहीं, मेरे को कुछ खुद ही करना है और मेरे को खुद ही देखना है कि मैं कैसे कर सकता हूँ. फिर मैंने ये इंडिया वाली गेम खेली, रीजनेबल चल गई. मेरी फेम और पैसे की नीड जो थी इमीडिएटली बहुत जल्दी, इवन विद बिफोर आई वोक अप टू द होल थिंग, बिकॉज विद It got solved. या लाइक ब्रो विद रॉ एंड रियल, मैं सो के उठता ना, आई हैड 5-6 new 1,000 people just like asking about me. It was so strange at that point. I didn't, and I think it's very undertalked. People don't know how to handle fame. I didn't know how to handle fame. Yeah. I still probably don't know how to handle fame. Then I was lucky enough to have one foot here. So for me, always aspiration was playing the biggest game possible. I'm not too fond of स्टार्टअप खोलना है तो गूगल लेवल खोलना है. आई वाज लाइक मेरे को अपना एक गेम खेलना है और मेरे को ऐसी जगह खेलना है जहाँ मैं खेल सकता हूँ और रिस्क और रिवॉर्ड दोनों मेरा है. That is why I think America fit the bill so much better for me. But I was like, land of the free, do your stupid shit, sell your niche product. There is enough people who will buy it. यहाँ पे economics is great that way. Yeah. And also explore your personhood. ये मेरी secret aspiration है that I never get to talk about in the internet. The reason why I talk the way I talk and think the way I think is because I want to be true to myself. मेरे को clearly सोचने का है, मेरे को clearly explore करने का है human experience में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. I am not opposed to religious people. I am not opposed to atheistic people. I'm just saying I won't decide on it until I've known. So I am going to be skeptical of both sides. Yeah. You see what I mean? And I tend towards more the atheistic side because frankly. But the point is, I need to know मैं 26 साल का हूँ. This is my journey in that way. So I relate to that. That is why I always thought America. I tell you, aspiration कैसे decide होते हैं लोगों के, right? Dreams and stuff, which I feel. It's either through social conditioning or like it's basically through social conditioning. But social conditioning में क्या दो पार्ट होते हैं. One is environment, the other is content. Right? अब लोगों के ड्रीम्स उनके जो इन्वायरमेंट होता है ना उसके हिसाब से सेट होते हैं. उनका जो कंटेंट कंजम्पशन होता है ना उसी के हिसाब डिसाइड होता है. सो बहुत लोग होते हैं. सो देयर let's divide the entire society is in a way where one person doesn't have to think about what will I eat tomorrow and one person has to think about if I don't work I have to eat tomorrow. बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ. ये भी दो डिवाइड. अब जो पीपल हैव टू थिंक अबाउट व्हाट विल आई ईट टुमारो, उनके इन्वायरमेंट उनकी ऐसी कंडीशनिंग कर देते हैं कि उनके लिए ड्रीम इज कि भाई खाने को को होना चाहिए. हाँ हाँ हाँ. अगले 1 साल तक भी नहीं काम करूँ तो खाना होना चाहिए. दैट्स देयर बिगेस्ट ड्रीम. अब आती है सेकंड पार्ट which is most of the people who have internet access, most of the people who are watching this, right? Sure. This कैसे होगा कि इनको होता है कि 1 महीना खाना तो है, घर वालों ने वो सॉर्ट कर दिया है, राइट? अब इनकी एस्पिरेशन और ड्रीम्स किससे बिल्ड होता है? कंटेंट से. क्योंकि नाउ दे हैड इंटरनेट. उनको कोई नहीं था कि तुम्हारे सुबह आके तुम्हारी मॉम या डैड तुम्हें एक चाटा मार दो, जा काम कर जाके सारे, कि सफाई कर जाके पैसे नहीं सफाई आएंगे, करते बस हाँ. पैसे नहीं आएंगे, राइट? इनको नहीं बोल रहा कोई, ये बैठे हुए रूम में. सो ये जब रूम में बैठे हुए हैं तो इनके लिए इनके ड्रीम्स और एस्पिरेशन तभी डिसाइड होंगे बेस्ड ऑन कंटेंट और फ्रेंड्स, या जो तुम्हें कहानियाँ सुनाई जाएगी. घर वाले जो बोलेंगे कि हमने ये किया वो किया, तुम्हें लगे यार घर वालों ने तो बहुत मेहनत करी, अब मेरे को इनसे बड़ा करना है, इन्होंने मुझे इतना दिया, तो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आ जाएगा, राइट? स्टोरीज तुमने इंटरनेट पे देख लिया कि यार भाई गैरी वी तो ऐसा था गरीब सा, अब बस तो क्या हो गया, मैं भी गैरी वी बनूंगा, राइट? देन यू फील लाइक कंटेंट आ गया वहाँ पे तुम करने. तो पूरा गेम एस्पिरेशन सेट होता है तुम्हारा कंटेंट से, और तुम तब उस टाइम पे किसको रोल मॉडल बनाते हो, कौन सी स्टोरी को रोल मॉडल बनाते हो, दैट प्लेज एवरीथिंग फॉर यू. Dreams are never given, they're always chosen. That's a brilliant line, by the way. You should tweet that. I don't know if you have already. No, I haven't. Okay, so this is going on. This is going to Twitter tomorrow. Bro, ये तू बहुत ज़बरदस्त बात कर रहा है, और मेरे को ना यही लगता है. मेरे पेरेंट्स उस टाइम पे they could afford television, for instance, Tata Sky. अब मैं Tata Sky पे अगर फॉरेन मूवीज़ देख रहा हूँ, सिर्फ मेरी बात नहीं है ये. It's a large chunk of population from India who was well off around that time, Yeah. who was exposed to only American culture. And so that is also why it was never very difficult for me to fit here, because I kind of get the cultural reference.
So you're very right. That is where I think my aspiration to, and I was never about going to America until like 2016, 2017 around जब मैं CA कर रहा था. I was like मेरे को देखना है बाहर दुनिया में क्या है. यहाँ क्या decide, हाँ. यार और कंटेंट से ही तुझे अमेरिका आने का क्यों था? Because there were movies, there was stuff which was sold to you. Yeah, content. Yeah, right. Content, right? Content. मैं तू first time देख रहा है कि यार Friends होता है. Like let's talk about majority How I Indians, Met Your Mother right? की बात How I करते हैं, Met Your Mother देखा. American Pie Barney भाई लोग Stinson खरीद बनना खरीद के है. American Pie. Remember there was a time where people used to go to DVD stores and CDs में American Pie लेके आते because for them there was like soft porn was a game, right? Right. तो उनको ये aspiration, उनको लगा American colleges मतलब American Pie, मतलब Project X. Yeah. India colleges क्या होता है? ये क्या ही है, right? So there's one majority of the people. So now let's talk about the two sides we're talking. So the one side who's thinking about 24/7 thinking about food to eat, उनके क्या सपने हैं? मुझे IAS बनना है, मुझे IIT जाना है, मुझे IIM जाना है because they are looking for stability. बिल्कुल. अब जिनके स्टेबिलिटी है वो लोग क्या सोचते हैं? मुझे अमेरिका जाना है. क्यों? क्योंकि अमेरिकन पाई जैसा कल्चर जीना है. मेरे को रिस्क मुझे प्रोजेक्ट एक्स खेलना है, मेरे को ऐसी पार्टी करनी है, मेरे को ये दुनिया होनी, ये है रियलिटी. एंड देन दे वॉच अदर कंटेंट एज वेल कि रातों रात लोग रईस हो जाते हैं, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, ऑल ऑफ दैट. सो देन यू फील लाइक दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ. खैर भाई अमेरिका में ये बात तो है, तू चाहे माने चाहे ना माने. जैसे एक ना देयर वाज अ स्टडी अबाउट मूविंग सोशल classes in India. It takes many generations to move social classes in India. Here it's very cheap to move social. Like the American dream is a very alive thing. Yeah. Even though there is obstacles and such. But you can be anyone, you can get here and you can do anything. Yeah. Which I think for a country is a great thing to have. Without making commentary on any of the other countries, the ability for entrepreneurs, for risk takers to rise up the economic food chain. एक सतीश रे को जानता है? You seen that comic? Satish was on Vinamra's podcast. And I love that podcast. I had no idea सतीश की स्टोरी ऐसी है. सतीश lived in a place जो वो हमें स्टोरीज में जैसे बताते हैं ना हमारे बापों की स्टोरी होती है. सतीश खुद कहता है मैं अपनी स्टोरी किसी को क्या सुनाऊं? तुम बोलोगे मेरे बाप की स्टोरी थी ये कि मैं भाई 4 किलोमीटर जा रहा हूँ स्कूल के लिए एटसेट्रा एटसेट्रा. वो एक बात कहता है उस पॉडकास्ट में, कहता है भाई वो गाँव ऐसा है अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे ना तो तुम नहीं निकल सकते. इंडिया में दिस फैसिनेशन विद IIT IIM इज बिकॉज ऑफ दैट. बिकॉज अगर तुम्हें सोशली अपवर्ड मूव करना है ना, एजुकेशन इज प्रॉबली द बेस्ट एंड ओनली वे. It is. Right. Because that's the only way to get exposure to change your environment. Move cities. Yeah. Have a reason to move cities, bro. तो environment तुम कैसे change करोगे? तुम्हें पता ही नहीं है. Dude, just think about people, right? People who come from those villages. उनके लिए कितना difficult है to just think of an idea कि यार मैं घर वालों को छोड़ के निकल जाऊँ. बिल्कुल. Because they know कि अगर मैं बाहर जाके short मेरा chance नहीं है, तो my parents will die out of hunger. So इसलिए IIT IIM is like crazy मेरे लिए स्टेबिलिटी. मतलब मेरा आईटी में होगा पक्का मेरे घर वाले अब नहीं ऐसे जा रहे ना मैं जा रहा. लाइक आई नो दैट एवरीबody will eat. आई नो कि मेरा IAS हो गया, लग गया. आई नो दैट एवरीबडी विल ईट. देयर इज सो मच. I know. और भाई So there was this one किसी एक IAS का I forgot. I saw like Instagram पे क्लिप्स नहीं आती, IGTV पे 2-3 मिनट की क्लिप आ रही थी, राइट. एंड वो IAS था and that IAS said like he's a big guy, someone I forgetting his name. वो बोलता है कि वाई पीपल फ्रॉम यूपी बिहार एवरीथिंग ये डोमिनेट क्यों कर रहे हैं इंडस्ट्री, लाइक वाई एवरीबडी IAS वहीं से क्यों आ रहे हैं. एंड ही वाज फ्रॉम देयर. इज लाइक इट्स नॉट दैट कि वहीं से लोग आ रहे हैं. हिज पॉइंट वाज बिकॉज देयर स्मॉल विलेजेस एंड प्लेसेस वेयर दे कम फ्रॉम इज सो ऑप्रेस्ड कि उन्हें पावर की भूख होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होती. उनको पता होता है कि पावर इज द ओनली वे टू स्टे अलाइव. तभी वो ये बन पाते हैं क्योंकि तू सोच. तो देयर हंगर इज टू, इट्स नॉट हंगर इज नॉट टू एक्चुअली हैव अ गुड लाइफ. द हंगर इज उनको पता है कि तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम MBA कर लो तो भी तुम्हारी जिंदा रहने की गारंटी नहीं है. तुम ये अगर IAS बन के निकल गए तो तुम्हारी जिंदा रहने की गारंटी है. और भाई वो बहुत सेक्सी क्लिप थी, लाइक आई लव्ड इट. मनीष भाई ने एक बार मनीष भाई से बात कर रहा था, एक तो जनता के भाई, दुनिया के YouTube के भाई मनीष भाई, शाउट आउट मनीष पांडे. और उनका वो है ना फूड विद डिग्निटी वाला आइडिया, दैट रेवोल्यूशनलाइज्ड द वे आई थॉट. बिकॉज ब्रो अमीर आदमी भी गरीब आदमी को देखता है, गरीब आदमी भी अमीर आदमी को देखता है. वो पिक्चर बड़ी क्लियर होती है. आज भी मेरे लिए फ्लाईओवर पे गाड़ी रोकना इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स फॉर मी, बिकॉज बिलीव इट और नॉट, so deeply empathetic, I feel bad for not giving them money. And if you give them money, you don't know if it's ending with them, क्या वो नशे के लिए यूज हो रहा है या माफिया के पास जा रहा है. But when Manish bhai said food with dignity, it changed my mind about bro, जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है ना आदमी की, वो खाना भी थोड़ा कम खा लेगा पर इज्जत बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी. और हमारा एनवायरनमेंट, यंग कंट्री, whatever, बहुत लोगों के पास इज्जत नहीं है ब्रो खाना का मांगते हुए. भिखारी हैं वो यार. और भिखारी दुनिया में, यहाँ भिखारी नहीं होते, यहाँ स्ट्रीट पीपल कहते हैं उनको, यहाँ होमलेस पीपल कहते हैं, यहाँ इन्हें बेगर्स नहीं कहते. हमारे यहाँ बेगर्स होते हैं, अफ्रीका में बेगर्स होते हैं यार. सो एक तो पहले एक पुरानी बात जो मेरे को याद होगी, दैट यू सेड दैट अमेरिकन ड्रीम इज अलाइव. आई फील इंडियन ड्रीम इज नाउ अलाइव.
it is becoming. It is become. You are Like very now, on. I feel no matter where you come from, तुम इंडिया किसी भी कोने से आते हो, अगर इंटरनेट ने ये बहुत अच्छी चीज़ कर दी. इंटरनेट से you have access to the best capital, to the best people, to the best ideas, Are you to the best thanking minds. Ambani for this? Like I'm thanking everyone who was responsible for it. Like everyone. I know. मतलब Agreed. Jio definitely played like a huge role. So Agreed. thanks to this guy. और उसने वो फ्री में करके ना, I feel उसने खुद का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंडिया को सिखाई दिया कि कैसे करते हैं. पर उसने देश के लिए बहुत बड़ा एक है ना, लाइक इंटायर कंट्री पे ही डिड अ फेवर. बिकॉज फ्री के टाइम पे इतने लोग फर्स्ट टाइम इंटरनेट पे आए जिनको पता नहीं था ये दुनिया क्या होती है. बिल्कुल. एंड वो लोग आज किल कर रहे हैं. एंड नाउ दे हैव अ ड्रीम टू एक्चुअली किल, क्योंकि उनके लिए सब ईजी हो गया. सो सोशल क्लास चेंज करना अब इंडिया में relatively easier हो रहा है. बिल्कुल, I agree. It's अभी भी obviously there are so many challenges. बिल्कुल, I agree, bro. अब जो second point of it, we're talking about food with dignity and other stuff, right? I tell you, it's a problem of like our country. We have been suppressed most amount of the time, right? How? हम लोग जितने टाइम इंडिपेंडेंट नहीं रह चुके उससे ज़्यादा टाइम स्लेव रह चुके हैं. हाँ. Right? Right. So because we were slaves, because we were dominated by other people, so they have taught us this thing. They have left this. Yes. कि जब वो छोड़ के गए तो जिन हमारी लोगों के हड्डी हाथ बड़ी में थी. छोड़ के गए थे वो लोग बाकी लोगों को सप्रेस ही कर रहे थे. तो वो दूसरे लोगों को ऐसे देख, जिस तरीके से लाइक द वे ब्रिटिशर्स यूज्ड टू लुक एट इंडिया, हट गरीब, हाँ, native साले हट यहाँ से, हट इधर से, हाँ, राइट. तू कुछ भी करता हो, हाँ. द सेम वे जो ब्रिटिशर्स जिस इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने, जो राजाओं के सामने, जिन लोगों के सामने छोड़ के गए, वो लोग भी इनको ऐसे ट्रीट करने लगे. अंग्रेज चले गए, इनको छोड़ गए. इनको छोड़ के चले गए, राइट. हाँ. तो अब वो क्या, अब हमारे पास जो रही वेल टू डू आदमी की रोल इमेज ही वो थी. रोल इमेज मतलब ये आदमी ऐसे ट्रीट करता है, ये ऐसा अमीर आदमी ऐसा होता है. अमीर आदमी ऐसा. तो हमारे मन में वो आ गया है. एंड वो आ गया है वो क्योंकि वो बन चुका है. दैट्स व्हाई यू डू इट. हैव यू हर्ड दिस थिंग? अब आई फील वेरी बैड व्हेन आई से इट. यार इन लोगों से ऐसे बात नहीं करो ना, सुनते नहीं है. एंड ब्रो, यू वुड बी सरप्राइज कितनी कॉमन बात है ये बोलना. हाँ. लाइक वेरी कॉमन, राइट. एंड आई एम श्योर इसका एक काउंटर पार्ट इन लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटास भी होता है कि इनसे ऐसे बात करो वरना ये लोग फिर ऐसे करते नहीं, राइट. दोनों अब ये बना हुआ है फ्रॉम द टाइम व्हेन वी वर डोमिनेटेड. राइट. तो ये जो बात है ये आज तक अभी तक बच्चों को सिखाते हैं. लाइक इवन इन आवर सोसाइटीज वेयर आवर पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली ग्रेट. Like we are grateful that हम लोग parents और everybody has been really great with the society, with the education, with the stuff which they know about, right? हाँ उसके बाद भी हमको ये बातें सुनने को मिलती है. जबरदस्त. So imagine जो less educated backgrounds हैं उनको कितना सुनने को मिलती है. And तभी food with dignity is a far-fetched dream, क्योंकि ये बात हटानी पड़ेगी कि जब हमारी जनरेशन वाले लोग ये बोलना बंद कर देना कि इनके साथ ऐसे ट्रीट करो. जब when you इनको और उनको से सब एक जैसा जब तक नहीं करने वाले तब तक food with dignity is only going to be a dream. That is also a very interesting thing about this place. Caste has never been an issue here. There has been racism, no doubt. But यहाँ पे, like you'll have, हमारे यहाँ पे, even bro, तू अपनी parties take. Reflect on the kind of parties that you go to or you did before you were famous and such. All people there, तू किसी पे भी उंगली रख लेगा, roughly same socio-economic strata. हम लोग, हमारा social interaction भी between class इतना solidly होता है कि अब तुम उससे मिल नहीं रहे, वो आइसोलेटेड है, उसको तो बोलोगी ना, उनसे ऐसे बात करते हैं. तुम्हारा कोई फ्रिक्शन ही नहीं बना उनके साथ. राइट. यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है. यहाँ पे तू गरीब है तो तू गरीब वाले तरीके से बात नहीं कर सकता आदमी से. वो भी इंसान है, उसकी भी रिस्पेक्ट है ब्रो. मैं अपने सुपर को फोन करके नहीं बोल सकता बैंड चो आके ठीक कर. मेरे को भी उससे यार आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम करके ही बात करनी पड़ेगी और थैंक यू बोलना होगा. और इट इज नॉट जस्ट कि थैंक यू बोलना होगा एज एन ऑब्लिगेशन. यू जस्ट पिक दैट अप. That this society has done a good job then. Like In that way. In that way. This is good because you would know better. Yeah. Since I don't live here, तो मेरे को पता ही नहीं इधर की क्या scene है. Discrimination is every society's problem, and here racism and जो natives के against होता है, huge problem, no doubt. Economic class is not that big an issue here. हमारे economic class is more pronounced. You can see it. It's a major issue, and that will only get solved when we learn from countries like this. Maybe I don't know how much trouble you'll get in for saying this. Yeah. No, this is YouTube. This is I'm just. It's okay. I mean, bro, if some other country is doing good thing, then we they should learn. Like, जहाँ से सीख सकते हैं वहाँ से. अब देख इसको equalize करने के लिए एक बात बोलता हूँ. There's one thing which India should. Oh, the constant pressure of being a content creator. One thing which like Americans or like other countries should, people from other countries should learn from India is empathy. Agreed. Even like right? just chill the fuck out. I'll give you one simple example. Either you're walking on the road, you're smoking as if तुम्हारे बाप की इलाका है, right? India में people are afraid कि यार ये सामने वाले को problem तो नहीं होगी, right? They are considerate about other things. You are so spot on. इधर consideration zero. They give zero fucks about other person. होगा भाई तेरे को
तू asthma patient होगा, तू मर रहा हो, मेरे को नहीं होता, मैं मेरी फूकूंगा. Like I'll दूर smoke चलना. while walking. Right. You have a problem, you walk away from me. Right. And India में ये नहीं होता. India में we feel We are permission seeking people in India. yeah. New York! That's New York. In fact, when you come here, it's such a downside being Indian, and this is something people will have as an opinion about Indians. People wonder very often, America में लोगों का Indians को लेके क्या opinion होता है. They think we are docile. They think we are permission seeking people. And we are permission seeking people. we are. We don't want to disturb you. If you, even now in my apartment, I would never speak on the phone in the living room because I'm like, और लोग भी यहाँ आ रहे हैं. Huh? My They're other roommates won't considerate think. people. हाँ, my other roommates won't think. And it's like, I don't, it's just culture. Like, you know, whatever. Right, Our हाँ. cultural teaches us to be considerate because we all live with families. Yeah. We are not individual things. कि We're तुम community रात में को पार्टी करके सकते हो. मेरे पापा थप्पड़ मार दे मेरे में रात को मैं घर में पार्टी करूं तो मैं लाता ही नहीं रात को 1 बजे शिश करके लेके आता हूं लोगों को अंदर. ये लोग आते हैं और भाई and I'm like bro मैं सो रहा हूं. I'm sleeping. Who gives a fuck? You are So yeah, this thing world should learn from India. That's what I feel. Like, on genuinely. the other end, while we're at this issue, if you're Indian and you're traveling abroad, stop asking for permission. Say sorry. Like get in the mind where you should not be docile. Fuck it, figure it out. I continue to agree that it's a great strategy to be that empathetic. I continue to agree to that, but when you're trying to get persuasion, when you're trying to do that kind of stuff, don't be that permission seeking. I think be more bold. That's the answer. Yeah. Like don't give other person power over you No, don't. for no reason. दो लोग एम्पैथेटिक हो ना भाई तो वो एम्पैथी चलती है. एक एम्पैथेटिक हो एक हरामी हो ना तो दोनों को हरामी होना होता है बैलेंस मेंटेन करने के लिए. This is something I've learned from living here for like 5 years. Because Then you'd explain better. Like I don't know, I've not experienced it because मेरा experience maximum in one country I've lived for like apart from India is like 1 month or 2 months. And mostly मैं बहुत surrounded in my environment pedigree रहता है because I've always traveled as a speaker. Right. Not as a student. तो Right. स्टूडेंट की क्या इज्जत नहीं होती, तो खुद बनानी पड़ती है. As a so you would know how to deal with different kind of people at different stages. So that you have better experience. मेरे साथ good thing happened. There's a bad thing happened, not good thing. That I was always travel as a speaker. So हमेशा एक sense of कि यार even if I'm like a bad speaker or good speaker, वो एक sense of respect के साथ देखते, तो मुझे कभी भी extra work नहीं करना पड़ा जो तुझे करना पड़ा. So you're better equipped up. या ब्रो मतलब मैं जब शुरू में आया था मेरा तो मुंह ही नहीं खुलता रहा ब्रो डर के मारे. क्योंकि हमें तो ये भी नहीं अलाउड होता ना कि भाई तुम अगर क्लास में कुछ बोल रहे हो बिना हाथ खड़े बोलो. हाँ. तू समझ रहा है यहाँ पे 1-1.5 सेमेस्टर तो मौका ढूंढते ढूंढते निकल गया कहाँ मैं अकलमंदी की बात कर सकूँ. I think what that feeds, that kind of irrespective courage, where I'm not, like, you know, I'm not thinking about you, is it also bleeds into innovation. Because here's what I saw. When we were in classrooms early on in my first few semesters, people would just speak their mind and they would be super wrong sometimes. I would not. And what that would do is that would help me think better, Yeah. even if they were wrong. That made me realize सही होने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करने की ज़रूरत है. So that courage bleeds into कोशिश bleeds into innovation also. Yes. You know what I mean? Dude, that's a great thing. Damn. क्या हो रहा है ऐसा सिलिकॉन वैली में जहाँ ये खोलते हैं और स्टार्टअप चल जाता है और नहीं भी खोलते 100 स्टार्टअप मर भी जाते हैं, सब वहाँ क्यों खोल रहे हैं? पार्ट ऑफ इट इज एनवायरमेंटल फर्टिलिटी कि तुम्हें कोई इतने लॉ लू नहीं है सब. बट द अदर थिंग इज दीस गाइज आर रियल इनोवेटिव्स उस सेंस में ब्रो. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में इनकी इनोवेशन का कोई मुकाबला नहीं है. Yep. हर चीज़ में यार बोल्डनेस, वो तेरा करेज वाला पॉइंट बहुत सही. इससे मुझे याद है there's one of my friend, he went to Stanford, right? And he said कि मैं तूफान स्टैनफोर्ड में हो गया एडमिशन, राइट. बड़ी बात है GSB भाई, में बहुत जा रहा बड़ी हूँ, बात है. MBA के लिए GSB जा रहा हूँ. I walked in, I'm feeling smart, and in 1 hour first class, I felt the dumbest person. I was intellectually humiliated. Yes. Okay. So there's like, then he said कि then my only mission became that I want to intellectually humiliate other people as well. Right? तो बोलता Stanford is a place for a year where there are 60 fuckers, or like I don't know what's the number. Yeah. Like these number of people, they all come together to one class, including professor. They all want to intellectually humiliate each other. और उस humiliation में तब तुम कब genius बन जाते हो तुम्हें पता नहीं चलता. I relate to this 1:1. So, first few semesters I'm silent as fuck, and having been the only person, जैसे यार like whenever I was at parties or with friends, I was the one who was talking, right? Here I come and I cannot speak, and it's such a broad difference. I write about in my book also. I didn't know what to do. Then I fell into the same company of people who were like intellectual domination boss. Like हमें इतना सीखना है कि हम बोल सके कहीं भी खड़े होके. And for the next 2 years, we just met as often as we could, at least once a week, sometimes thrice a week, to just discuss things that did not even bother us. Like for instance, we discuss transgender bathrooms. What is the pro and con?
let's forget right and wrong, let's discuss this in our private settings and see what we arrive at. और उस process में halfway through you would flip. So you're not just thinking pro, you're also thinking con while you were thinking pro. That level of sharpening of the brain, like वो कहता है ना, I don't know who says, the level of your intellect is how much you can hold opposing views and still fucking work. Yeah. That taught me that it is almost never certain what is real in social issues. That you have to really be smart and carve exactly what you think is right and then say, I guess. Then say something like, this is what it appears like up until I have seen. You know what I mean? Intellectual matters mein, that humility, that courage, that ability to confront and go at shit, that I learned here. And these guys are very tough about it. Yeah, these guys are very, very, so they're rational. They're very rational about all this stuff. And that's, I loved it. I love what you said. बहुत sense कर रहा है, मतलब बहुत deep thought है कि if you, I'm thinking from my perspective कि if I have the ability to look at every situation with pros and cons and still fucking go do it, then I'm unstoppable. Like I already know the worst coming, I already know the best things happening, and then I'm still going for it. मतलब कोई तो एक apart from rationality एक irrational मेरे अंदर कोई एक emotion होगा जिसके से मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि rational सारे evade हो गए, तो मेरे को रोकना बहुत difficult होगा. Like I feel it's the key element in a disruptor. That you're very courageous. Like you're very courageous to go out there, look stupid, and if you are proven stupid, then you agree कि हाँ ठीक है ना, चलो ये change करते हैं अब और आगे बढ़ते हैं. बिल्कुल. So that ability is what you need in a disruptor. So many. I tell you, here's one thing. Disruptor की बात करें ना, I feel maybe many people will not like. I might get into trouble. Like, love that. Give us trouble, please. It's like humans. I feel like all humans are born to be disruptors. We are not born to work. We are born to think. And जो बोलते हैं ना काम करो, मेहनत करो, ये करो, घंटा कुछ मत करो. Like this is what I feel. Like you don't need to work in order to get ahead. You need to think. You too smart work वाली बात कर रहा है. Like भाई point क्या है? And why I say this? तुम पैदा हुए हो disrupt करने के लिए. Because अगर तुम disrupt नहीं करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, right? So when you disrupt, you start a new category. And then your challenge, तुम इस category को कितने बड़ा कर सकते हो, only depends on how many people you can influence. But you can't mathematically say all humans are born for that. I think. But that's taking away the humanity of people who just work jobs, no? You don't think? Like कुछ आदमी तो कहता है ना बढ़िया मेरे को करना नहीं, मेरे को घूमना है, मेरे को skiing करनी है. माँ की आँख मेरे को नहीं disruption करनी. मतलब as a creator, let's say not disruptor, let's say they're creators, passionate. Like what I'm saying is, there should be passion for creation, there should be passion for disruption. Right. कि मैं इस notion से बाहर निकल गया. तू जैसे वो बात बोल रहा है कि मेरे को करना ही नहीं, इतनी मोहमाया में रहना ही नहीं, मुझे मेरे दिन के 2 घंटे काम करने के 4 घंटे मेरे को स्कीइंग करनी है, मौज करनी है, मेरे को पार्टी करनी है. That's creation. Like I love doing it. I'm only doing it for love. So you should only do that. Like people should not force themselves to work at all. I think that is the tragedy of India in that way, where a lot of people have to make compromises on what they love to do things to only make things work. That is the sort of tragedy that you and I both try to address in so many ways, where we try to be like, to financial freedom के through मैं कहता हूँ courage whatever. Mindset. हाँ, right. The key issue is करो वो जहाँ मन जाता है, जहाँ तुम fluently घुस सकते हो, है ना? और उस sense में there is a certain creation, there is a certain passion, there is a certain bringing to life of something new involved in that, and I agree. I think all humans are made for being uniquely them. Yeah. Whether that leads to a disruption in the marketplace or not is a very narrowly defined sort of. But कुछ भी करने का है, मेरे को तो फंसना नहीं है. मैं सच बताऊं, मेरे को बहुत डर लगता है उस चीज़ से. मेरा लाइफ में सबसे बड़ा डर तहा जिंदगी, मेरे को लगता है बचपन में कोई ट्रॉमा हो गया था मेरे को फंसना नहीं है. बस मेरे को ये नहीं फील होना है कि मेरे को मोबिलिटी चाहिए और मैं मोबाइल नहीं हूँ. And that's problem majority Indians. क्या तू फील करता है ऐसा? Yeah, मतलब I don't know, मेरा ये डर है, it's a kind of a डर. Probably I don't have this fear because मेरे environment कभी भी ऐसा रहा नहीं है कि मैं फंस गया हूँ. जब भी ऐसा रहा है तब मैंने कोई डिसीजन लिया और मैं से बाहर निकल गया हूँ, तो मेरे को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कि फंस जाऊँगा निकल जाऊँगा, right? So I don't come from that background, that's why I don't understand the intensity of that. Somebody who's from that social conditioning, somebody who comes from that kind of background or environment, उसको हो सकता है बहुत बड़ा डर हो कि भाई वहाँ वापस नहीं फंसना, क्योंकि उसके लिए चीज़ें डिफिकल्ट होगी, मेरे लिए नहीं थी. I've been blessed to be born in a family where I had food to eat, clothes to wear, place to live. पर सिर्फ उस तक बात नहीं है ना ब्रो. मैं जिस चीज़ में फंसा हुआ था ना, मेरी फसावट बचपन में तो कुछ और थी, वो छोड़ भाड़ में. वो भी ऐसी थी कि मतलब I had to go to places I didn't want to go to and be stuck there because my mom and my dad want to take me. That's minimum. That's nothing. CA
इज अ लाइफस्टाइल वेयर पैसा है, कपड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्तों के साथ घूमने घामने को सब फैसिलिटी है, लेकिन जो तुम डे टू डे लेवल पे 8 घंटे दिन में 12 घंटे कर रहे हो ना, उसमें तुम 1% भी खुश नहीं हो। और तुम उस टाइम पे फंसे हुए हो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन में, उस टाइम तुम फंसे हुए सोसाइटी की, तुम्हारे दोस्त जिनसे तुम compete करने लग गए हो उस दुनिया के एनवायरनमेंट में, उनकी एक्सपेक्टेशन में। और वो फंसना भी साइकोलॉजिकल सफोकेशन थी मेरे लिए। ये मेरा केस है, आई एम नॉट सेइंग। हाँ तो तभी तू फंस चुका है, तेरे को तो पता है, दैट्स व्हाई यू नो, राइट? मेरे लिए नहीं था। सो फ्रॉम डे वन माय पेरेंट्स हैव बीन लाइक कि जो करना करो, कोई कुछ वो नहीं। मेरे साथ कभी नहीं था। मेरे साथ तो माय मॉम एंड डैड लाइक दे वर सो चिल। आई रिमेंबर वन टाइम, इट्स वेरी फनी कि 45% आई थिंक माय डैड वाज सेलिब्रेटिंग। भाई यार ऐसे पाप भाई, एंड इट्स नॉट ओके एंड द बेस्ट पार्ट ऐसा नहीं था कि मेरे को लाइफ में फेल होता था, मैं हाँ। हमेशा पास होता था। मैं उससे पहले 60% के आसपास आते थे। ऐश पानी लेगा प्लीज। हाँ उसके पहले 60% के पहले आते थे, साफ कर लियो। हाँ राइट? 60 50 60 टाइप। हाँ पहली बार लाइफ में 40s में आए, हाँ तो भी मेरा डैड सेलिब्रेट करे कम आने पे। हाँ एंड इज लाइक ठीक बढ़िया है ना, पास हो यार। गया। फॉर मी द शॉकिंग पार्ट वाज कि कम आने पे सेलिब्रेट कर रहे हैं ज्यादा। देख, अगर मैं हमेशा फेल होता और 45 आता था तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, फिर सेलिब्रेट तो करो करना है। बहन, फिर तो लेकिन मिठाई बच्चा उठाओ। तुम्हारा बच्चा 60 लेके आ रहा है और फिर 45 आए, स्टिल ही सेलिब्रेटिंग इज लाइक चिल ना। तूने कितना पढ़ा था? मैं ज्यादा नहीं पढ़ा था। ज्यादा नहीं पढ़ा तो बात है ना, बहुत बढ़िया। मेरे घर में ये रूल था भाई। And now give you context. My sisters, like we live in the same family, right? हाँ Joint चाचा की family. लड़की है। हाँ हाँ No. Both of them 94-95%. उनको डांट पड़ती थी नहीं, डांट नहीं पड़ती, वो मेरे को नहीं पता कि क्या क्या होता था। मैं उस बारे में बात नहीं कर सकता, सॉरी। नहीं, उनको यार वो इतने परसेंट आते थे, उनको क्यों डांट पड़ेगी? क्यों पड़ेगी, सही बात है। मतलब उनको तो वो आपस में इतनी लाइक मेरी कजिन्स जो हैं वो लोग आपस में इतने कॉम्पिटिटिव थे सब लोग कि किसी को 94 आ रहे हैं, किसी को 95 आ रहे हैं, तो आपस में रो लेते थे। तो घर वाले क्या बोलेंगे उनको? मैं ही था एक अजीब सा। मैं समझ गया तेरा भाई। मेरे घर में ये रूल था 85 पहले 90 से नीचे लाओगे सब बंद, 90 से ऊपर ला रहे हो जो करना है करो, चेस खेलनी है खेलो, फुटबॉल खेलना है खेलो, सब अलाउड है, 90 से नीचे नहीं। फिर जब तुम 10th 11th में आ जाते फिर वो 85 कर दिया घर वालों ने नेगोशिएट करके। बट मेरे घर में ये था कि इससे नीचे आ रहे हैं, मतलब पार्टली बिकॉज ऑल्सो आई थिंक very early on it was very clear that I'm very good at academic stuff. So my parents were like, the only reason he does not score is because he does not study. And they were like, पढ़ ले, उसके ऊपर जो तेरे को बकर करनी है कर। सीए के साथ भी यही था, सीए कर ले, फिर तेरे को जहाँ जाना है जा। So मेरे साथ ऐसा है कि बिकॉज आई थिंक मेरी फैमिली में ऐसा है दैट माई डैड वॉज टॉपर टिल 10th एंड उसके बाद ही हैज़ टू लीव स्टडीज एंड फॉर 2 years like till he reached 12th he lost all hopes and my dad has seen like extreme poverty, right? Like he has sold coconuts on the streets, he's done like multiple vendor shops, like stuff, like बहुत काम किया, like he has been couple of days he has to sleep in kacha houses and stuff, like all of that. So he used to feel that FMCG के अनुपम खेर है। so like he's seen extreme all of these things, right? हाँ तो उन्हें लगता था कि 10th से like he always felt कि मैं पढ़ाई छोड़ दी, इसकी वजह से मैं पीछे रह गया लाइफ में। मैं अगर पढ़ लिख लेता तो मैं आगे निकल जाता, राइट? और फिर एक टाइम आता है सोसाइटी में जब हम लोग व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, ही नोज दैट ही इज़ नॉट एजुकेटेड इनफ, स्टिल उनकी सोसाइटी में ज़्यादा जो एजुकेटेड है उनसे ज़्यादा इज्जत हो रही है बिकॉज ऑफ द स्टफ विच इज़ डन। सो दैट गेव हिम कॉन्फिडेंस कि यार मेरे बच्चे भी, इफ़ the point is they need to do something, they need to do one thing, that's it. Like my dad from day one used to say कि नहीं पढ़ना है मत पढ़, कोई एक चीज़ कर ले। मैं क्या करता था, कभी टीटी खेलूंगा, कभी बास्केटबॉल खेलूंगा, कभी फुटबॉल खेलूंगा। मैं डाल ये मत कर, तेरे को स्पोर्ट्स करना है तू स्पोर्ट्स कर, तेरे को पढ़ना है तू पढ़ाई कर, तेरे को डीजे वीजे बनना है, तेरे को जो बनना है तू वो कर, बट एक चीज़ कर। लाइक don't do like multiple things. That's it. So I think that also comes from because my dad got successful in one thing and then he feels कि probably he was educated or not educated, that didn't matter. उनके सक्सेस में उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ा because he was commitment and persistent enough. तो इसलिए मेरे को भी कभी सबका प्रेशर नहीं मिला and it's not the pressure of my brother as well. तेरे को डर किस चीज़ का लगता है फिर तेरी लाइफ में? अब जैसे तेरा मैं वाई समझ गया, वाई में ऑब्स्टिकल क्या है? एक तो सबसे बड़ा डर बताऊँ, बहुत फनी, हाँ बट वो मेरे को जेन्युइन डर है यार। मेरे को लगता है कि मेरे को ट्रैप कर देगा, कोई फंसा देगा तेरे कोई को? फंसा देगा। कैसे? लाइक माई बिगेस्ट, आई डोंट नो, मेरे को बस ऐसा लगता है कि लाइक मान ले मैं एयरपोर्ट पे आ रहा हूँ, मेरे बैग में ड्रग्स मिलेंगे, कोई रख देगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना भाई कहीं वो तो फंस सच में, लेकिन तू ले जाता है। अबे हाँ नहीं ठीक है। अच्छा तो मतलब कोई ऐसे ड्रग्स रख देगा और मतलब ऐसे डर लगता है, राइट? कि रास्ते में चल रहा हूँ, कुछ हो जाएगा, कोई मेरे को गलत चीज़ में फंसा देगा, कोई बोलेगा किसी को मर्डर कर दिया, कहीं जेल हो जाएगी। लाइक I feel like I'll happen to be at a wrong time at a wrong place. Do you think you made a lot of right decisions in life, like so that you don't mess up? तो इसीलिए शायद उसका स्टेक दिखता है कि भाई मैंने इतने राइट डिसीजंस लिए, एक गलती ना हो जाए। Yeah, I feel मतलब मेरे को लगता है फंस जाऊँ और सब, लाइक हो सकता है कि
कुछ गलत होता है जिसकी वजह से, एंड माई प्रॉब्लम इज, एक तो ऑब्वियसली आई डोंट वांट लैंड अप इन जेल, दैट्स एवरीबॉडी इज, बिल्कुल अपार्ट फ्रॉम जेल, अगर मुझे हाँ अगर मुझे जेल नहीं भी हो ना, तो वो वॉरेन बफेट की कोट सुनी है कि you shouldn't be doing anything which you should be ashamed of if it comes on a newspaper's front page, right? तो मेरे साथ वो सीन है कि अगर कहीं ऐसे के फंस गया और मेरे लोगों को पता चल गया, तो मैं I won't be able to live with that. Like that's my biggest fear. Like I don't want to be बेइज्जतेड हाँ, मेरे को बेइज्जत नहीं होना, बेइज्जतेड नहीं होना. बेइज्जतेड नहीं हो सकते भाई, बेइज्जतेड होना अलाउड नहीं, सही बात Like that, and that's one of the biggest reasons why I never acted in my content creation journey as well. Because I felt कि मेरे को कोई ये ना बोल दे कि एक्टिंग कर रहा है. हाँ, मेरे को कोई ये नहीं बोलते कि भाई तू इस पे अलग इस पे अलग. जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, राइट, एंड दे वेरी फेमस एंड दे हैव डन एक्सट्रीमली गुड फॉर देमसेल्फ, Right. बट आई नो देयर रियल साइड एंड आई नो देयर साइड ऑन कैमरा. कंटेंट Right. या मैं नहीं चाहता कोई मेरे को ऐसा बोल दे, बहुत छोटी चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा लोगों को पता है धंधा अलग है, बिजनेस अलग है, ये अलग है, भाई सही चलता बात है. बट मैं वो भी नहीं चाहता. लाइक आई डोंट वांट यू टू लुक एट मी लाइक कल तो कुछ और बोल रहा था मेरे को. मैं तेरा दोस्त हूँ ना, तू बोल सकता है भाई न्यूयॉर्क में तो मेरे साथ ऐसा था. हाँ भाई, न्यूयॉर्क में तो लड़कियों से बातें हो रही है, कंटेंट वगैरह नहीं करनी. हाँ, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ. हाँ, तो मैं नहीं चाहता. तो मैं 100% ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ विद एवरीथिंग, एंड दैट्स माई बिगेस्ट फियर. तो वेरी इंटरेस्टिंग. मेरे को फंसना नहीं कभी. मेरे को मतलब कोई ये नहीं बोलेगा भाई तू ये गलत कर रहा है और ये सही. मैं यही करता हूँ भाई, मैं ऐसे ही. मैं तुम्हें जो करता हूँ उसके लिए गलत लगता हूँ, चलेगा. जो मैं नहीं करता हूँ ना, उसके लिए मैं फंसना है. भाई मेरे को बहुत डर लगता है यार. तू इसलिए दारू वारू भी नहीं पीता, इसलिए नहीं पीता कि कुछ गलती ना हो जाए दारू पी के, कहीं ज़्यादा पार्टी हो जाए, बाई चांस पता ना चले भाई. या दारू इसलिए नहीं पीता क्योंकि लाइफ में एक फिलॉसफी है, एनीथिंग वर्थ डूइंग इज वर्थ ओवर डूइंग. तो मुझे लगता है अगर मैं पीने लग गया तो बहुत पीऊंगा, फिर रोकूंगा भाई. मैं तो कहता हूँ निकाल ले, मैं तो कह रहा हूँ निकाल ले 25-26 से पहले. ऐसा ना हो बाद में कभी किसी ने पिलाई, मजा आने लगे, फिर तू बहुत पीने लगे बुढ़ापे में. इससे बढ़िया अभी सारा खून निकाल ले. देख, मैंने आई थिंक बिटवीन 21 और मे बी इवन लिटिल बिफोर 19 and 22, 23 आई वाज डन विद अल्कोहल. आई वाज लाइक मैंने इतनी पी लिया लाइफ में, मेरे को सरदर्द चाहिए ही नहीं दारू का. अब मैं शौक से बियर पी लूंगा, मेरे को टेस्ट पसंद है, दोस्तों के साथ होगा, आई विल ड्रिंक सोशली. बियॉन्ड दैट मेरे घर पे मेरे बर्थडे से दारू पड़ी हुई है, मैंने छुई भी नहीं है, मेरा मन ही नहीं करता. मैं इसीलिए इन सब चीज़ों के साथ ना सेक्स, अल्कोहल, ड्रग्स, एक्सपीरियंसेस, ट्रैवलिंग, वट एवर दिस माइट बी, जो तुम्हारे मन में प्राइवेट इच्छा है, कंटेंट छोड़ो, एक बार जी के निकाल लो अपने अंदर से, वरना बूढ़ों में फंसी रह जाती है, बबल एयर बबल की तरह फटती रहती है फिर वो. बट आई टेल यू, मेरे को अल्कोहल पीने का भी मन ही नहीं हुआ. So that's also one thing. So and because कभी मन नहीं हुआ, I don't stop myself because कि यार नहीं करना चाहिए, मन ही नहीं हुआ. रीज़न था, बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न था कि यार मेरे को सब ग्रोन अप सीइंग पीपल हु हैव बीन अल्कोहलिक्स एंड उनके लाइफ में बहुत ड्रामा होता है, राइट. देयर हैव बीन फैमिली रिलेटिव्स, देयर हैव बीन फ्रेंड्स, देयर हैव बीन फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स. तो मैंने बहुत देखा कि अल्कोहल का ड्रामा होता है. तो बचपन में तो ये था कि ड्रामा नहीं करना, मैं समझ गया, राइट. तो मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि बेइज्जत नहीं होना. तो बेइज्जत मैं पी के वो करूँगा तो मेरे को भटकना नहीं है. देसी आदमी हमारे देश में ओवरऑल ना शौक से पीने का ना, अमेरिका में भी नहीं है मासेस में, बट तो भी एक शौक से पीने का वो है. जैसे मान ले ये जूइश लोग होते हैं, इनकी सेरेमनीज में तुम इतनी वाइन पीते हो, पार्ट ऑफ द रिलीजन. तो आदमी सीख जाता है कि अच्छा भाई थोड़ी पी के भी रहा जा सकता है. मैं देखता ना बचपन में शादियों में हमारे दूर दूर के रिश्तेदार आते थे, ऐसी दारू पी ली गिरे पड़े. अबे क्या हो रहा है भाई, बच्चों के सामने गिरे पड़े हो भाई, क्या कर रहे हो. तो आई गेट दैट. And so I'm a Sindhi. I've seen cocktail parties from the beginning, right? And in cocktail parties मैं किसी अंकल की बहुत इज्जत करता हूँ और all of a sudden मेरी पूरी इज्जत गिर गई. और वो भैंचो हाथ पे आइसक्रीम रख के यूं खा रहे हैं दारू पीने के बाद. ठीक है, मेरे से कह रहे हैं बाथरूम ले जा. Dude, I think मैंने रियल सोसाइटी का ना जो गंदा चेहरा होता है, गंदा चेहरा, लाइक जो लोग रियल होते हैं, हाँ, वो मैंने कॉकटेल पार्टीज में देखा है. पंजाबी सिंधी कॉकटेल पार्टीज में. एंड आई एम नॉट टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज़ मैं वहीं जाता था, तो मैं सिंधी हूँ, मेरे घर वाले वहीं लेके जाते थे. मैंने बनियों में देखा. सो माय डैड डजंट ड्रिंक, माय मॉम डजंट ड्रिंक, सो दे डोंट ड्रिंक. तो मेरे लिए बहुत इजी था. तो यू नो, एंड देन द ऑब्वियस कॉन्वर्सेशन ऑलवेज इज बी लाइक, जब तुम घर आ रहे हो तो पापा मम्मी तुमसे यही बात करेंगे, यार वो देख यार वो क्या कर रहा था, ये देख वो क्या कर रहा था, राइट. बिकॉज योर डैड आल्सो इज नॉट ड्रिंकिंग. तो likewise for me, by the way, my dad, I've never seen my dad drink, maybe now a couple of times. तो माई डैड, बिकॉज वी हैव ऑलवेज सीन द अगली साइड, वो भी एक पॉइंट था कि यार नहीं करना. अब मेरे को पता चला है कि भाई लोग शौक से ही पीते हैं, मस्ती पीते हैं. एंड नाउ आई नो कि बम्बई आके हाँ कह रहा भाई, बिल्कुल बम्बई आके पता लगा है हमें. हाँ. नहीं मेरे दोस्त भी लाइक इन इंदौर आल्सो, माय फ्रेंड्स, राइट. आई हैव सीन माय फ्रेंड्स डूइंग craziest fucked up shit and they enjoy it and they do it because they know that I'm there. Because you're sober. You'll take I'm care. sober, मतलब और दोस्त है ना, not just me, like और दोस्त है ना, उनको पता है कि यार पूरी पी लो,
बकवास हरकत करेंगे तो इनके सामने करेंगे, संभाल लेंगे, लाइक दे वुड नेवर डू इट इन पब्लिक। सो मैं ये भी तो करा जा सकता है लाइफ में। बिल्कुल। तुम क्यों कर रहे हो पब्लिक में? तुम्हें आउट ही होना है, पूरा स्लॉश होना है, 4 उन लोगों के सामने करो जो जिन पे पूरा भरोसा है। प्लस ब्रो मेरे को लगता है इंदौर के साथ ना, जैसे फरीदाबाद इंदौर छोटे शहर है, तुम करते ही हाउस पार्टीज हो, तुम वो वाले सीन करते ही नहीं हो जहाँ पे तुम बार्स क्लब्स में जाके गिर रहे हो यहाँ वहाँ, राइट? सो मे बी दैट इज अ डिफरेंस ऑल्सो कि हमारा जो बेस ड्रिंकिंग स्पॉट्स है विच इज इंडोर्स विद फ्रेंड्स विद पीपल यू नो, दैट काइंड ऑफ शिट. With my family also, nobody drinks. They never drink. I've never seen them drink maybe a couple of times in my life. And my dad's very like critical. In fact, I remember हमारे यहाँ दिवाली पार्टी होती थी तो लोग पत्ते वत्ते खेलते थे. I was not even allowed to sit there because my dad would not let me sit in मेरे घर की अपनी पार्टी में. Because he was like ये influence गलत है. अब मैं पोकर खेलता हूँ. Alcohol was a big no-no. In fact, एक बार मेरे को याद है we were in Bahamas. तो हम क्रूज ले रहे थे फ्रॉम मायामी टू बहामास. इट्स एन आइलैंड कैरेबियन में पता नहीं, कहीं चेक कर लेना. माई डैड स्लेप्ट ऑन द डेक, टी शर्ट उतार के सो गए उल्टे होके. अब भाई जो धूप पड़ी पूरा स्किन बर्न हो गया पापा, ऊपर से नीचे तक पूरे बर्न. अब वो दर्द मारे, गर्म लगे अंदर बहुत. तो पापा हवाई वो बहामास में एक जगह रुक के बियर पी रहे थे. मैं गलती से उस रेस्टोरेंट में घुस गया, उन्होंने बियर ही फेंक दी कि मेरा बेटा ना देखे. तो आज भी मैं पापा के सामने कभी हाथ नहीं लगाता. शायद कल पहली बार लगाई थी मैंने शैम्पेन हाथ पापा के सामने हिम्मत करके. बट मेरे लिए ये था कि मना क्यों कर रहे हैं, इसे करने से क्या होगा, ये बटन से क्या होता है. सिर्फ इस चक्कर में मैं अपनी दुनिया की सारी गंदी लाइफ जिया, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे को इतना सभ्य बनाने की कोशिश करी. मेरे अंदर जानवर अलग. तो फॉर मी ऑल दोज एक्सप्लोरेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, व्हिच आई आल्सो थिंक इज अ वेरी कॉमन रिएक्शन in India. So no, not just in India, with people. If you tell them no, they will for sure go and do it. yeah, you know, 100%. ये होता ही है बहुत. ये तो Basic human psyche. बेसिक ह्यूमन साइकी कि नहीं बोला है तो करना ही पड़ेगा. ऐसे क्या बात है, राइट? मेरा डर ये है राज, कमिंग बैक टू द इशू, कि आई विल नेवर बी एबल, और नॉट नेवर बट कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं इस तरीके से भटक जाऊंगा, मैं दिमाग लगाना बंद कर दूंगा, मैं मेहनत करनी बंद कर दूंगा. आई विल नेवर लिव द कंप्लीशन ऑफ माई पोटेंशियल. बिकॉज से वॉट यू विल, आई एम नॉट द बिगेस्ट क्रिएटर. एनीबडी हु नोज मी इज लाइक यार हाँ ये कर लेता है काम, राइट? इवन इन क्रिएटर सर्कल्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, पीपल एवरीवेयर हैव लुक्ड अप टू मी इन अ वे वेयर दे हैव लाइक ये कर लेगा. आई हैव नोन दैट सिंस आई वाज अ किड कि मैं कुछ कर लूंगा. I'll tell you, इस बात से मुझे याद है मेरा एक जो बड़ा डर है, which I've never opened up. It's because you talked about it. I'll tell you, one of my biggest fears is मैं बहुत बोलता हूँ, and मैं अगर उसको बैकअप करने के लिए कुछ कर नहीं पाया ना तो मुझे बहुत बड़ा. That's my biggest fear. That I talk so big that I want to be able to do it. That you have to live up to it. Sometimes that's even a pressure technique people use on their own selves, where they be like मैं ये करूँगा और अब प्रेशर है और अब मैं उसे उस प्रेशर में खींचूंगा. हाँ, पर मेरे लिए डर है ज़्यादा. Like it's not a technique or something which I do it. It's बचपन से ही, because यार I tell you, first time जब 11th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं कॉमर्स की बुक्स, तब मैं फोर्ब्स पढ़ता था. लाइक मैं देख रहा हूँ कि मुकेश अंबानी रईस बन गया, उस टाइम पे कुशपाल सिंह होता था DLF का, राइट? सो मैं उन लोग के बारे में पढ़ रहा हूँ, राइट? I'm Sikh guy. हाँ, Sikh. He was a Sikh, no? हाँ. So I'm reading about these guys, right? So मेरे तब बचपन से like I've been big, I've been aspiring to become big, and I've been talking about it. Like I used to tell my dad, I used to tell my mom. So there's a thing which I say from the beginning till now. जब भी मेरे घर वाले मैं कुछ अवार्ड जीतता हूँ, कुछ कमा लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, जब भी कोई कुछ बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेट करता है ना, I tell them, you know what, अभी तक कुछ नहीं हुआ, this is day one, it's still day one, अभी तुम देखो आगे क्या करता हूँ. तो मैंने खुद के लिए इतनी बड़ी दुनिया बना ली है. Probably if I look back 10 years ago, the thing which I'm living right now is beyond my imagination. But today also I feel like it's day one. So my fear is कि अगर मैं ये नहीं कर पाया ना, तो like I won't be able to live up. Like मेरे कभी ऐसा नहीं होना चाहिए that I'm not able to. That's so interesting. That really is so interesting. ये conversation बहुत ही honest जगह जा चुकी है. हाँ. कि यार और हम लोग, पता है हम लोग सबके मन में ना एक छोटी लिटिल वॉइस होती है, राइट? there's you and like बैक में एक पीछे वॉइस बोल रही है, भाई ये बोलिए मत बोलिए, लाइक ऐसे. I'll give you one example. तुम होते हो जो पीने के बाद दिल्ली फरीदाबाद में आ गए, तो ये देख तेरा भाई, ऐसे तुम होते हो, देख बेंच दे खरीद के दिखाऊंगा मैं, तेरा भाई खरीदेगा, तेरा भाई ये खरीदेगा, राइट? तो तुम उसको कंट्रोल करते हो हमेशा. whenever there's an ego battle, किसी सामने वाले, तू देख तेरे को बताऊंगा एक दिन. मैंने ना कभी कंट्रोल नहीं किया, मैंने मुंह पे बोल दिया. मैंने मुंह पे, लाइक जब होता है ना, मुझे अगर जैसे होता है कि नॉर्थ इंडिया कि कभी अगर ऐसा हुआ कि तू देख इसको बताऊंगा एक दिन, मैं मुंह पे बोलता हूँ, तू देख ले बेटा तेरा टाइम आएगा. हम मन में नहीं सोचते कि बहुत तेज चल रहा है ना, देख एक दिन बताऊंगा इसको. मैं बोल ही देता हूँ मुंह पे,
मैं तो देख ले बेटा, देखेगा तू। अब मैंने बोल दिया बिग माउथ, राइट, Now you have to live up to now it. to live up to it. So now my fear is कि अगर मैंने बोल दिया ना तो if I'm not living up to it, I will feel very bad. I've never second guessed my ability. Same. राइट मेरे को पता है, मेरे को फॉलोअर काउंट या बैंक बैलेंस से जेन्युइनली मेरी सेल्फ वर्थ रिलेटेड नहीं है। मेरे को पता है मैं जो बोल रहा हूँ, आई हैव रियली स्पेंट मैनी ईयर्स स्टडिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, इम्प्लीमेंटिंग दैट। तो आई डोंट फाइंड माई सेल्फ इन दैट पोजिशन ऑफ्टन वेयर आई हैव टू टर्न अवे फ्रॉम माई ओन वर्ड्स। या मैंने ऑल्दो गुस्सा और गुस्सा ही नहीं यार, bro, Not turn away. जवान है, हाँ I'm not saying turn away. It's like just not being able to live up to it. या राइट यार तूने बोल दिया एग्जाम्पल कि देख मैं आईवी लीग में जाके फोड़ के आऊँगा, और तूने ट्राई भी कर लिया, सब कर लिया, तेरे को मिला ही नहीं एडमिशन, तू क्या करेगा, राइट? तो बिकॉज सेम जस्ट लाइक यू, आई नो दैट आई हैव द एबिलिटी टू डू इट। आई थिंक अगर मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूँ तो मैं बन सकता हूँ जो मुझे बनना है, राइट? तो इवेंचुअली हार्ड वर्क ही बनता है आके। तुम्हें पता है तुम्हारी एबिलिटी है, मेहनत करने को रेडी हो कि नहीं। Does that make sense or no in your word? yeah, kind of. Because what else do you mean by procrastination? Okay. यार कंफर्ट, मतलब आराम आ गया लाइफ आराम आ गया लाइफ में तुम। सो एट वन पॉइंट यू गेट कंफर्टेबल एंड यू डोंट वांट टू डू स्टफ, and you start avoiding. So I tell you, the people say that failure is a curse. I say winning is a curse. Yeah. Early winning is a particular curse. It's a curse. Like if you win early in your life, it's a curse. It's a bad situation, bro. Because dude, when you fail, you still want to get up and you want to show up in the gym. You want to do stuff. Like you want to work. You want to read. You want to do everything possible. You want to fight. You want to fight. You want to fight. That's the word. Right. But when you win, you You're start done. skipping. I am the winner. Yeah. And you're like, वो 2018 में लड़ाई हुई थी असली, तो अब क्या करूँगा लड़ाई करके मैं? Exactly. Right. You start skipping. Mentally बूढ़े हो जाते हो। हाँ, तुम पढ़ना छोड़ देते हो, तुम उतनी मेहनत करना छोड़ देते हो, तुम उतनी हंगर तुम्हारे अंदर चले जाती है। यू बी लाइक यार अब बॉडी बन गई है ना, एक दिन छोड़ देते हैं, राइट? छोड़ देते हैं, ओके? एक दिन एंड बिकॉज देन यू गेट कंप्लेसेंट, एंड इफ यू स्टॉप लाइक द डे यू स्किप वन डे, ब्रो, यू आर डेड, यू आर डेड। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई आई हैव नेवर बीन एबल टू मेक माय बॉडी अगेन, आई मीन टिल नाउ, अभी एक तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट बहुत जिंदगी है, बनेगी बॉडी। पर is I used to boast that from literally never do gym to having six abs, it took me just like 75 days or 80 days, and fucking good body where I'm lifting like 200 kgs of deadlift, right? Because एकदम hardcore diet करा मैंने, नमक वमक छोड़ दिया, like proper boiled, right. protein, carbs सब करके, और first time किया, young था, energy कर दिया, और करके बन गई body। मैं लगा कभी बन जाएगी। Exactly. ये मेरे साथ हुआ when I was 18-19. I built, bro, huge muscles. I was a bigger frame than this, and I'm still huge. And I was like, बस ऐसे बन गया। ये तो सब यूं ही कर रहे हैं वर्कआउट। फिर मैंने छोड़ दिया। कोविड के बाद उठा, मोटा हो गया हूँ मैं भाई, क्या हो रहा है लाइफ में? हाँ। सेम, आज तक मैं भी सेम चीज़ के स्ट्रगल कर रहा हूँ। लाइक आई नो, लाइक यार भाई अब तो पहले 3 महीने में हो गया था, अब ये 3 महीने सोच ही रहा हूँ। हाँ, 3 महीने सोच ही रहा हूँ। राइट। So that's like early winning is a curse. Like you don't want to win early. I also think, And if you win early, then you need people around you who keep you grounded, who keep you in the fight ever again. I agree. Like early you need winning, bigger games then. Yeah, you need bigger. You need bigger games. Or just like people around you who make you play bigger games. Right. Of course, that is how you. There is one more thing that I just thought about, probably the last thing I thought about. The other thing I definitely don't want is to get addicted to winning and playing too long. Like, luckily enough, I think when I was young, I'd travel a lot, I'd experience stuff a lot. I did not pay heed to institutional means, which is padhai karo, naukri karo, loda lesson, until very later. And what I found was, bro, जो जीवन में मज़ा है ना कुछ ना करने का, और सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करने का जो उस मोमेंट में आती हैं, which you could look at from a very spiritual lens also, है ना, living in the moment, लोड़ा लसन. I think there is a certain merit to finding a life even free from work. I'm not sure about it. मैं बहुत सच बता रहा हूँ. एक टाइम पे वो जीवन जिया था, 21 साल का था, तब दुनिया और थी, तब considerations और थी. Especially with men, also one of the things I think about a lot. As you grow from being a boy to a man, things change very much. You've experienced that very young, you know that. I don't know if men ever get an opportunity to be like, छोड़ मौज करते हैं. Maybe 10-15 दिन के बीच में breaks आते हैं लाइफ में, अच्छा घूमा यूरोप. Yeah. बट फंडामेंटली आई थिंक इवेंचुअली अपना ऐसे कोई हवाई में बीच साइड घर हो
सुबह उठो, पानी में नहाओ, अपनी किताब लिखो, 4 बातें पढ़ो, दुनिया से जाके जंगल में तुमने प्रेजर्वेशन पे कुछ काम कर लिया. There is something to be said about being free from the obligation to make money and win every day. What do you think about that? Yeah, there is. I think that's one of my biggest goals, to be honest, that after 30, 32, I don't want to work for money. And I only want to work for the things which I love. If I feel like working, it's there. And that comes from the feeling that as a man, I don't think we have the ability or we have To just had stop. the ability कि भाई, you know. कि बस हाँ हम तो आराम कर सकते हैं. आराम And कर I'm not chill saying कर women have that ability. मैं उसको उस sense में नहीं ले रहा. I can only talk about from a man's perspective because I'm a man. Like I Exactly. don't know I about agree. her. So जो भी मैं बोलूँगा, it will be very unfair for me to quote Agreed. from her behalf. Agreed. This is what I feel as a man who's like growing into manship or manhood, whatever. Manship. This is what I legitimately feel. बंद कर दे. हाँ. इसकी मेरे को नहीं पता मेरे को जीवन में आराम करने को कब मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे पापा आराम करें ना. मैं चाहता हूँ मैं संभालूं वो चीज़ें. मैं चाहता हूँ मेरी मम्मी आराम करें, वो क्यों काम कर रही हैं. और हो सकता है you don't know how life pans out, you don't know what 20 years down the line look like, but for the next 4 or 5 years I don't see a break. Yeah, Also as a leader of an organization. I tell you, हाँ. as a leader of organization and everything, दोनों एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, as humans, हम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, that is we plan a lot. And we do less? I tell you what, हमें करना बहुत कुछ है, हम करते कुछ नहीं. And that's the biggest problem, right? कि and why I say कि हम करते कुछ नहीं है, we are so focused with मुझे मेरे पापा को रिटायर करना है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे एक दिन बिजनेस बनाना है, मुझे एक दिन ये जॉब करनी है, मुझे ये करना है, that you not thinking about right now. भाई तेरे पास अभी at this point तेरे पास 24 घंटे भी नहीं, तेरे पास ये अभी 1 मिनट ही है, just 1 minute, right? 1 minute. So I feel that people should stop planning. मतलब हर चीज़ तुम्हें लगता है कि यार मेरे पापा को रिटायर करना है, ठीक है ना, आज जाके बात करना, अभी कर. राइट? तुझे लगता है कि यू आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि तू यू आर सेल्फलेस इनफ दैट तू खुद की लाइफ छोड़ के घर वालों की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की रेडी है, कर, अभी कर. पर 10 साल बाद क्या कर, ठीक है. अब पॉइंट है, ठीक है, इसमें विद पीपल हु आर नॉट एबल टू मेक इट, पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग इट बिग, सबके साथ प्रॉब्लम ये है दैट दे प्लान अ लॉट, दे डोंट डू इट. व्हाट डू यू वांट टू डू राइट नाउ, डू इट. ठीक है. अब होगा बहुत टाइम ऐसा होता है कि यार मान ले मुझे एग्जाम्पल, मुझे एक डिग्री करनी है, अब डिग्री तो लगेंगे 3 साल यार, राइट? बट कैन यू, इस डिग्री इज ब्रोकन डाउन टू 6 सेमेस्टर्स, 6 सेमेस्टर्स इनटू 6 सब्जेक्ट्स, 6 सब्जेक्ट्स 6 मंथ्स, राइट? अब तू व्हाट कैन यू डू टुडे राइट नाउ कि तेरा एक सब्जेक्ट सॉर्ट हो जाए, वो सॉर्ट हो, अगर तेरी प्रायोरिटी वो है, वो सॉर्ट कर ले. अब आगे करना, अब तेरे पास टाइम हो गया, अब तू करना आगे. अब तेरे को सोच कि ओ यार जो 6 महीने काम होना था वो अगर मैंने ढंग से किया तो 1 महीने में ही हो गया, अब मेरे पास अगले 5 महीने, अब मैं करता हूँ या तो एक्सप्लोर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, पैसे कमाता हूँ, घर वालों के साथ जाता हूँ, किसी बकचोदी करता हूँ. देन ना तू अभी से 6 महीने की सोच रहा है, जब तूने पहले तेरा 6 महीने का काम ही नहीं किया. सो वी डू लेस एंड वी थिंक अ लॉट. सो फर्स्ट द पॉइंट इज व्हाट एवर यूर थिंकिंग, डू दैट एंड फिनिश दैट अप. उसके बाद तेरे हाथ में बहुत टाइम होगा, फिर करते रहते को जो करना है. Let me sharpen this. Sorry, I was so excited because what you were saying was so interesting. It's not that people plan a lot and then don't do it. I never trust people when they say I want to do X. Because if you wanted to do X, you'd be doing X. Yeah, exactly. That's what I meant. बिल्कुल, exactly. And होता क्या है ब्रो, मेरे को अपने पापा को रिटायर इसलिए करना है क्योंकि मेरा बड़ा भाई कह रहा है. तो तुम रिपीट कर रहे हो अपनी डिजायर जो तुमने बोरो कर रखी है किसी से. बिकॉज अगर तुम्हारी एक्चुअल तेरे को टट्टी करनी है तो उठ के जाकर करता है ना टट्टी. तू ये थोड़ी सोचता ओ हो मैं प्लान कर रहा हूँ टट्टी करने के लिए. Desire when arrives, you do it. Yeah. It is because that is not truly your own desire. That is a repeated sentence you've borrowed from somewhere else that you don't do it. Yeah. Because ask yourself, what else are you doing if not that? Right? What else are you spending your time doing? मैं हर रोज शाम को फुटबॉल खेल रहा हूँ 3 घंटे. Then that's what you want to do. Yeah. Yeah. Look at your behavior. This is what you want to do. Ask yourself, why do I want to play football? I like playing. Okay, if you like playing, that's a very good cause. Play 3 hours of football. Right. But it's because I like the fame that Ronaldo has. So what you're essentially going for is fame. While you're saying मैं अपने पापा की मदद करना चाहता हूँ, but तुम 3 घंटे फुटबॉल खेल रहे हो 28 साल की उम्र में और कहीं कुछ नहीं जा रहा है. Now you're in complete mess. तेरे को फेम चाहिए तो तू फेम के लिए काम कर. सिंप्लीफाई करना, सच बोल खुद को. फेम के लिए कहाँ मिलता है? सबसे सस्ता फेम है इंस्टाग्राम, सबसे सस्ता फेम है यूट्यूब, सबसे सस्ता फेम है ये सोशल मीडिया. ठीक है, मैं कंटेंट क्रिएटर बनता है.
फिर ऑटोमेटिकली अगला ख्याल आना शुरू होगा। वो क्लैरिटी नहीं है कि तुम्हें एक्चुअली चाहिए क्या। इफ यू न्यू व्हाट यू वांटेड यू वुडंट बी आस्किंग। Exactly. It's a great way to put out things that people are not real with themselves. राइट, दे People आर are नॉट। People are not. Because, Nobody bro, is real with themselves. Like most of the people are not. Nobody तो चल ज़्यादा बोल। हाँ हाँ, Most of because the people that are not. means integrating your shadow, bro, the dirty parts of you. Every time you have a doubt, maybe मैं आलसी हूँ, शायद तुम हो आलसी। And that's why when you were saying ना कि मैं शायद मेरी किताब लिखूंगा, बीच पे जाऊंगा, वो करूंगा, that's where the point comes in. Like this is how you should build your family. Build a family is like get your significant other or maybe share, decide whether you want to live with your parents or no. Like list down your values. भाई मेरे लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। उसके बेसिस पे तुम अब लोग वैसे अपने आसपास बनाओ, तब तुम अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। तुमने लोग बना दिए जो एक्स वैल्यू के, ओके, फॉर मे बी लेट्स से योर ब्रदर, इट मीन्स लाइक ही इज सेल्फलेस इनफ दैट ही वांट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वो बोलता है कि यार पापा के लिए कुछ करना है, दैट्स हिज वैल्यू, राइट, दैट्स नॉट योर्स। Why are you repeating? तेरे लिए तुझे सोशल मीडिया में फेम करना है यार, सोशल मीडिया में, हाँ, तू बढ़िया, तू फुटबॉल खेल, हाँ, राइट, खेल फुटबॉल। तू लिख ऐसा कि भाई मैं रियल हूँ मेरे साथ, कि हाँ ये है मेरी वैल्यू, ये है कि मेरे को आज की तारीख में फेम चाहिए। मैं नहीं हूँ कोई सेल्फलेस टाइप का आदमी, मैं सेल्फिश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले एडमिट तो कर ले, फिर हो सकता है सेल्फलेसनेस पनप पाए वहाँ पे। उसके बाद एंड हर किसी के लिए लाइफ में आई थिंक यू वुड नो बेटर बिकॉज यू रीड ऑल दिस स्टफ इज पहले खुद की नीड्स पर कंप्लीट होती है, उसके बाद ही सेल्फलेस स्टार्ट होती है। वो मैस्लोस हायरार्की क्या है? वेल, मैस्लोस इज द डोमिनेंट paradigm, it's questioned, it's sort of right, but more importantly होता क्या है bro, by the time you're 18, particularly in a tough environment like that of Indian families, it's great and tough at the same time, you are mostly fighting trauma. Yeah. You're mostly fighting stuff you did not have as a 14-year-old when you're 24. So it's not even like कि वो अपनी needs, पहले मैं trauma लड़ूंगा। I'll tell you what's the problem. Okay, this is very wrong. Controversy, हाँ। The problem with Indian families and why people go through traumas, and I'm talking this because I've spoken to so many people for the mission which I'm on, right? Is there are 6 people who are together because in front of the society they wanted to be together because it looks great that they're good, like it looks great कि साथ में वो दुनिया के सामने नहीं दिखा सकते कि हम अलग हो गए, right? बिल्कुल। तो साथ में रहते हैं 6 people, 6 different ideologies, 6 different values, उन 6 की 6 एक्सपेक्टेशन है तुमसे। अब तुम्हारी ये मिक्स्ड सब चीजें, बिल्कुल, और उन मिक्स के चक्कर में तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि यार मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। हाँ। उसके बाद तुम कौन हो के बाद यू कांट इवन डिसाइड हु इज राइट। हाँ। Am I right? Am I my dad's right? My brother's right? My mom's right? Who's right? Who's wrong? It's so तुम्हें difficult to figure out family level पे कौन right wrong है bro, because तू उनका right wrong तो लेता हुआ बड़ा हुआ है। Exactly. अब तू कैसे बोल दे कि मेरा बचपन ही wrong है अगर मेरे पापा wrong है? Yes, and that's the problem. That's the problem. तो इसीलिए इस टाइम पे people should get out for 3-4 years, do their undergrad without Whatever being they bothered. want to do. Whatever, like I mean, Explore. Be in hard for circumstances 3-4 without years, family. be alone, like just live alone. And live alone में पता है अब क्या होता है, एक बहुत बड़ी problem with Indian, specifically like Asian families, is like when they live alone, they're not technically living alone. They're still on their daddy's payroll. They're still on That's their, not alone. That's not alone That's at not all, alone. right? They're still influenced by their parents. They still talk like doing stuff based on their parents कि हम यही खाते हैं, हम यही करते हैं, हम यही रहते हैं, हम यही करते हैं। उन्होंने खुद की लाइफ में खुद को चांस ही नहीं दिया खुद की आइडियोलॉजीज बिल्ड करने के लिए। बिल्कुल, राइट, तो वो 3 साल है ना, they should go with zero baggage, and then real stuff would start. and this is not to say that the Indian, like frankly, any day Indian family system over family systems here. I Okay, still think. okay, I tell you why I keep saying Indian families, because I've only lived in Indian families. I know. I don't know about The any rest other of the family. तो मेरे को सारी अच्छी चीजें और सारी प्रॉब्लम मेरी फैमिली में दिखेगी और कहीं दिखेगी नहीं। बिल्कुल। तो I wouldn't know. No, my point is, I also think Indian families का bro, if you look at what we don't talk about when it comes to colonialism या उससे पहले, you know, the being ruled by so one and someone, is that the world modernized, Indian constitution modernized, Indian markets modernized, the way you make money and consume culture modernized, but the roots of our culture in terms of how we live, our social culture, did not really modernize that much. So it's not that one is wrong, the other is right. It's just they're fundamentally incompatible in places. And that incompatible, so तुम हो सकता है बहुत खुश फैमिली लाइफ जियो, बट तुम्हारी इकोनॉमिक फाइनेंशियल लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहेगी बिकॉज तुम निकले ही नहीं कभी मंदसौर से। यू सी माई पॉइंट? और वो क्यों? नाउ यू ऑप्टिमाइज फॉर फैमिली लाइफ, इमोशन, व्हाटएवर, क्योंकि तुम घर वालों के साथ हो, बट यू हैव गिवन अप ऑन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. सो आई थिंक देयर इज अ कंपैटिबिलिटी इशू. देयर इज आल्सो, I tell you the biggest problem. Okay, I'll ease things out. This is what I believe in. राइट, Okay,
इंडियन फैमिलीज में एक चीज़ है, घर की बात घर में रहनी चाहिए, राइट? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खत्म कर रही है हमको। बुराड़ी टेल यू व्हाई। हाँ जैसे बुराड़ी में हुआ था, घर की बात घर में रह गई थी। सॉरी Fuck, dude, I should not be laughing at this. नो एक कट कर देना लाफ्टर को ना, उसको बीप कर देना। हाँ पता ही नहीं क्या बोला था, क्यों हंस रहा हूँ पता नहीं। ऐसे ही फनी हाँ, लाफ कुछ याद आ गया मुझे पुराना। हाँ द प्रॉब्लम विथ, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, राइट? तेरे घर में अगर नल खराब हो जाता है तो क्या करता है? प्लम्बर बुलाता है, हाँ राइट? तेरे घर में मान ले फॉर एग्जाम्पल बल्ब खराब हो जाता है तो क्या करता है? इलेक्ट्रीशियन बुलाता है, राइट? तेरी गाड़ी खराब हो जाती है तो मैकेनिक बुलाता है। तो एवरी टाइम व्हेन देयर प्रॉब्लम्स आउट ऑफ योर एक्सपर्टीज यू कॉल पीपल फ्रॉम आउटसाइड, या राइट? तब तुम नहीं बोलते हो घर की बात घर में रहनी चाहिए। राइट। फैमिली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब उनके आपस में प्रॉब्लम होती है तब वो बाहर से किसी को बुलाते ही नहीं है कि यार मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, क्यों बताऊं मैं दुनिया को? भाई जिसको पता है, जो एक्सपर्ट है, चाइल्ड एक्सपर्ट, उससे बात कर ले। मेरे वाइफ के साथ बनती नहीं है, रिलेशनशिप काउंसलिंग कर ले, क्यों बताऊं मैं दुनिया? लाइक तो हमारी फैमिली में प्रॉब्लम ये है दैट घर की बात घर में रहनी चाहिए। दिस आइडिया पता नहीं किसने बनाया और ये इतना इनबिल्ट हो चुका है कि हम एक्चुअल एक्सपर्ट्स के पास तो जाते ही नहीं है। हम खुद ही नल सुधारने में लगे हुए, खुद ही इलेक्ट्रिसिटी, भाई करंट लगेगा, क्यों नहीं सुना, समझ रहे हो? एंड वो करंट लगते जा रहा है, लोगों को समझ ही नहीं आता। सो द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन वी नो कि जब प्रॉब्लम होती है तो बाहर से दुनिया को लोग बुलाना चाहिए, तो फैमिली में भी जब प्रॉब्लम होती है तो बाहर की तुम्हें एक्सपर्टीज को लाइक एंटरटेन करना चाहिए। फंडामेंटली ये वो रोल बेस्ड इशू है ब्रो, बिकॉज एंड यू नो व्हाई आई सेड बुराड़ी इज बिकॉज बुराड़ी वाली वीडियो में दिस साइकोलॉजिस्ट सेज दैट दिस इज अ टिपिकल इंडियन फैमिली वेयर फ्रॉम द आउटसाइड इट मस्ट अपीयर एवरीथिंग इज ऑल राइट, Yeah. बट इनसाइड व्हाटएवर इज हैपनिंग राइट, वेरी फक्ड अप इन दैट केस। इट्स द सेम थिंग, इट्स रोल बेस्ड। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिया में फैमिली है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है ना, बिजनेस कॉन्सेप्ट, yeah. ओनली इन इंडिया कि एक अनडिवाइडेड फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल। टू, यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे होता है, मेरी रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए, आई शुड लुक कूल टू पीपल, which is the fundamental unit of existence, should appear attractive, otherwise people won't play with you. Yeah. Right? So the family must be stable and whatever. Yeah. And the third thing is the role prescribed for a family is peaceful. यहाँ पीस कैसे ना हो? तो अब तेरे को बाहर प्रिटेंड करना है हम पीसफुल है, हम स्टेबल है, हमारे बीच में कोई इशू नहीं है, ताकि अदर पीपल प्ले विद यू, दे इनवाइट यू टू देयर पार्टीज। ऐसा कोई ना बोले ओ डिवोर्सी को बुला लिया पार्टी में, which is also a weird thing, right? And internally the cancer cannot kill the cancer. Yeah. The cancer is cancerous, the cancer will grow. Yep. So that is, you are right, there is a problem with that too. That's the problem. And so this doesn't mean that you should not live together. Like I feel living together in Indian family system is the best. Like I would never I agree. like Give up on that. Yeah, I could never give up on that. And I'll agree to this. Like one day even I want to have a family and I want to live with everybody together, right? And that's the best way. But my problem to that is कि अगर हमें उसमें प्रॉब्लम्स आती है तो वी शुड रीच आउट, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। वी शुड नॉट ट्राई टू फिक्स समथिंग विच वी आर नॉट एन एक्सपर्ट इन। वी इफ वी डोंट नो हाउ टू फिक्स, लेट्स एक्सेप्ट इट। नहीं आता यार, Agreed. नहीं आता, क्या करें, राइट? Agreed. एंड वी नीड मोर पीपल टू कम आउट एंड बी स्ट्रॉन्ग। एंड इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम पार्टी में, अगर तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है तो तुम पार्टी में जाके हल्ला बोलो, "ओ भाई मेरे तो प्रॉब्लम है, मेरे पापा मारते हैं। हाँ। that is seeking sympathy. Yeah, right? yeah. That you should not do. Right. But reach out to right person. Ask them out. And इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे तरह ना इतना ज़्यादा इससे और फक्ड अप होता है। इतना ज़्यादा कल्चर है घर की बात घर में रहनी चाहिए। अब तुम्हें कहीं तो लेट लूज करना है, तब तुम शेयर करते हो किसी ऐसे चूते के साथ जिसकी खुद की लाइफ भी खराब है, और वो तुम्हें ज्ञान देता है क्योंकि उसे तो खुद पता नहीं है। जैसे हम दोनों। लाइक वो तुम्हें अलग ज्ञान दे रहे हैं। तो अब तुम अब तुम लाइक लेट्स से यू आर 19-18 ईयर ओल्ड, यू रीच्ड आउट योर गर्लफ्रेंड, यू टोल्ड योर गर्लफ्रेंड, वो उसकी फैमिली की प्रॉब्लम से चल रही है, वो तुम्हें प्रॉब्लम, वो प्रोजेक्ट करेगी। हाँ, वो उसकी फैमिली से जो उसने सीखा सिखाया वो तुम्हें ज्ञान दे रही है, तुम उसे ज्ञान दे रहे हो, तुम अलग फक्ड अप चल रही है। योर डैड reaches out to his friend because he can trust to that only one friend. He's afraid to go to a therapist but can reach out to a friend. Now friend, he himself is incapable of handling relationships. So everybody is seeking outside counsel कि चुपके से ना हम इससे ले लेते हैं। तो Under the table हो जाएगी सारी बात। अगर ओपन हो तो एटलीस्ट यू नो दैट यू आर सीकिंग आउट द राइट पर्सन। राइट। अंडर द टेबल के चक्कर में तुम और फक्ड अप कर रहे हो। अंधेरे में चाकू खुद को मार लेता है आदमी। सो दैट फक यार, हम कहाँ से कहाँ आ गए बे? हाँ ब्रो, मैं ये सोच रहा था मैं इसका इंट्रो क्या बनाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा भाई, हेलो हम राज के साथ बात करने वाले हैं इसके बारे में ब्रो, पता नहीं किस बारे में। ग्रेट कॉन्वर्सेशन, ग्रेट कॉन्वर्सेशन इन मोमेंट्स। मैं आई वाज लाइक हम इतनी ऑनेस्टी और वल्नरेबिलिटी के साथ वो बातें कर पा रहे थे। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। मजा आया। बट थैंक यू सो मच। नो थैंक यू सो मच। दिस वाज माय प्लेजर। दिस इज योर गिफ्ट। पुट इट ऑन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द पिक्चर। आई थिंक वी शुड गेट अ पिक्चर लाइक दिस फ्रॉम देयर।
American culture? This is not American. This is just happy culture. Happy. हेल्दी खा रहा है क्या? मेरे को फ्रेंच फ्राइज वैसे नहीं पसंद। ओ ऐश ऐश ऐश, ये तू कैमरे पे क्यों पकड़ रहा है? ऐश तेरा काम है कैमरा गिरने से बचाना, कैमरे पे कैमरा गिरने से बचाना, रिकॉर्ड करना नहीं। राज क्रिएटर इक्विपमेंट के बेस्ट फ्रेंड राज।